Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Light, Sound and Force. Learning objectives, understanding light, understanding sound, understanding force. देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स गिवन है, आपको L लिखना है उन ऑब्जेक्ट पे जो हमें लाइट गिव आउट करते हैं. Can you see anything when you enter in a dark room? No. The moment you switch on the bulb or the tube light, you can see everything. Can you read a book with lights off? No. This is because we need light to see things. अगर आप एक रूम में डार्क रूम में एंटर करते हैं आपको कुछ नजर आएगा? बिल्कुल नहीं. जैसे आप बल्ब को ऑन करेंगे या कोई भी ट्यूब लाइट ऑन करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं. और लाइट्स ऑफ है तो क्या आप बुक रीड कर सकते हैं? नो. बिकॉज हमें लाइट की जरूरत होती है चीज़ों को देखने के लिए. Understanding light. Light helps us to see. The sun is a main source of heat and light on the earth. The sun, candle, diya and lamp are examples of objects that give light. An object that gives out light is called a luminous object. Paper, table, kite and bed are examples of objects that do not give light. An object that does not give out light is called a non-luminous object. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लाइट की हेल्प से हम देख पाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें लाइट मिलती है उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल्स आपके देखिए ये सारे ही क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है. एंड जिन ऑब्जेक्ट से हमें लाइट नहीं मिलती है, लाइक आपका कैंडल है या आपका पेन है, टेबल है, व्हाटएवर, इनसे हमें लाइट नहीं मिलती, इन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. When light falls on any object, we can see it. We see non-luminous objects only when light falls on them. तो जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो हमें वो चीज़ नजर आती है. तो किसी भी non-luminous ऑब्जेक्ट में जब लाइट पड़ती है तो हमें वो नजर आती है. Fact file: The shade of a tree is actually its shadow. Tree की जो shade यानी छाया होती है, actually it's nothing but its shadow. Shadow. Have you ever noticed a dark patch on the ground when you stand outside in the sun or under a street light? The dark patch is your shadow. Shadows are formed when an object blocks the path of light from the sun, bulb, candle, etc. Sometimes shadows are smaller and sometimes they are bigger than the actual size. A shadow is always formed on the opposite side of the light. आपने कभी ग्राउंड में डार्क पैच नोटिस किया है? जब भी आप सन के आउटसाइड खड़े होते हैं या किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे अगर आप खड़े होते हैं तो डार्क पैच एक्चुअल में कुछ नहीं है बट कि क्या है, शेडो. तो शेडो कब बनती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो लाइट का पाथ है उसे ब्लॉक कर देती है या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, राइट? कई बार आपने देखा कि शेडो छोटी होती है, कई बार आपकी बड़ी होती है. तो शेडो एक्चुअली आपकी बनती है हमेशा जो लाइट का सोर्स है उसके ऑपोजिट साइड. Understanding sound. When we talk, we are making a sound. Our tongue helps us to make sound. We hear sounds of all kinds with the help of our ears. If you strike a steel tumbler with a spoon, it makes a sound. We hear various kinds of sounds such as the ring of a bell or telephone, the cry of a baby and the bark of a dog. Some sounds are soft, example whisper. Some sounds are loud, example ring of the school bell. Some sounds are pleasant, example music. Some sounds are unpleasant, example the continuous honking of a vehicle. We like to hear soft and pleasant sounds. We do not like to hear loud and unpleasant sounds. देखिए जब कभी हम बात करते हैं ना तो हम साउंड क्रिएट करते हैं, राइट? हमारी टंग जो है वो साउंड क्रिएट करने में हमें हेल्प करती है. एंड हम डेली बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ साउंड सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स. जैसे कि आप एक स्टील का टम्बलर यानी स्टील का ग्लास लेंगे और उसमें स्पून से स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से साउंड आएगी, राइट? अब डेली हम कुछ ना कुछ साउंड्स अपने आसपास सुनते हैं. कुछ साउंड आपकी सॉफ्ट होती है जैसे कि विस्पर. विस्पर का मतलब क्या होता है? जैसे आप कान में किसी के बोलते हैं ना, बहुत धीरे धीरे फुस आते हैं, दैट इज कॉल्ड विस्पर. स्कूल की जो बेल बजती है वो कितनी आपकी लाउड होती है ना? कुछ आपके कानों को बहुत अच्छी लगती है जैसे कि म्यूजिक है. और जैसे अगर कंटिन्यूसली कोई व्हीकल का हॉर्न बजता रहेगा तो कितना इरिटेटिंग लगता है ना? तो दैट साउंड इज अनप्लेजेंट. Noise. What happens when everybody in your class starts talking loudly at the same time? What happens when all the vehicles on the road start honking in a traffic jam? Sound that is loud and unpleasant is called noise. Too much noise disturbs us and is bad for our health. This is why we should learn to speak softly. We should always play television, music system, etc. at low volume so that we do not disturb other members of our family or our neighbors. आपने कभी सोचा कि क्लास में सारे ही बच्चे बहुत ज़ोर से लाउडली सेम टाइम पे बात करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? इसी तरह से अगर आप ट्रैफिक जैम में हैं और सारे ही व्हीकल्स उस टाइम पे हॉन्क करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? इन सब से एक साउंड निकलेगी जो बहुत ही लाउड होगी और बहुत ही अनप्लेजेंट. दैट इज कॉल्ड नॉइज यानी कि शोर.
अब बहुत ज़्यादा शोर होगा तो वो हमें डिस्टर्ब करता है एंड इनफैक्ट ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आपको हमेशा सॉफ्टली बोलना चाहिए। अगर आप टेलीविज़न देख रहे हैं, अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमेशा लो वॉल्यूम पे ही सुने, जिससे कि आप अपने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को डिस्टर्ब ना करें, ना ही अपने पड़ोसियों को डिस्टर्ब करें। फैक्ट फाइल, साउंड ट्रैवल्स थ्रू ईयर। इफ यू शाउट ऑन द मून नोबडी कैन हियर यू। दिस हैपेंस बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून। आपको पता है साउंड जो है ईयर के थ्रू मूव करती है, ट्रैवल करती है। अगर आप मून पे जाएंगे और आप कितना भी आप चिल्लाएं तो कुछ नहीं सुन सकते। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एयर। Understanding force. In everyday life, we push or pull things to move them. A push or a pull is called force. Force help us to do many things. देखिए, force का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पुल करना या फिर उसे पुश करना, दैट इज कॉल्ड फोर्स। और हम डेली कुछ ना कुछ चीज़ों को फोर्स करते हैं, यानी कि पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट सच एज फुटबॉल। ये फुटबॉल को पुश कर रहा है, किक कर रहा है, राइट? तो ये क्या कर रहा है? इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह से फोर्स की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट मूव स्टॉप भी हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। और फोर्स इसके अलावा ऑब्जेक्ट की शेप्स को भी चेंज कर सकता है। Friction is a special force that slows down movement. So when you push or pull an object to move it, the force of the push or pull should be greater than the force of friction. When friction is very less, things slide. When it is more, things don't move. If there was no friction, we would not be able to walk. We would keep slipping. Friction आपका एक special force है जो क्या करता है? चीज़ों को slow down करता है। तो आप जब भी किसी चीज़ को push करते हैं या pull करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, तो आपका जो पुश या जो आपका पुल है वो आपके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपका जब फ्रिक्शन लेस होता है तो थिंग्स क्या करती हैं? स्लाइड होती हैं। बट जब फोर्स ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, तो जो चीज़ें हैं वो मूव नहीं करती हैं। और आपको पता है अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते, आप स्लिप होते ही रहते हैं। एक्टिविटी टाइम टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन। चलिए अब एक्टिविटी में देखते हैं, फ्रिक्शन को समझते हैं। मटीरियल्स यू नीडेड: matchbox, talcum powder and a table. Method: keep the matchbox on the table, strike it with your fingers. Mark the point on the table to which it slides. Now add a little bit of talcum powder on the table. Try striking the matchbox again. Does it go further than before? Observation: the matchbox goes further than before. Conclusion: friction becomes less because of the talcum powder and so the matchbox slides, moves further. आपने एक माचिस की टिब्बी लेनी है, टैल्कम पाउडर लेना है। आपने क्या करना है कि पहले आप टेबल पे रखेंगे, उसको स्ट्राइक करेंगे, आप पॉइंट मार्क कर देंगे कि वो कितना आगे आपका स्लाइड हुआ है। देन आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर डालेंगे और फिर से जो मैच बॉक्स को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो अब आप नोटिस करेंगे क्या ये पहले से आगे गया है। तो ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आएगी, जो मैच बॉक्स है वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा पहले से। इसका कंक्लूजन क्या है? बिकॉज फ्रिक्शन बिकम्स लेस, फ्रिक्शन आपका कम हो जाता है, किसकी वजह से? टैल्कम पाउडर की वजह से। एंड इसीलिए जो आपकी मैच बॉक्स है वो थोड़ा सा आपका आगे स्लाइड हो जाती है। Summary: the sun is the main source of heat and light on earth. Light helps us to see things. Shadows are formed when objects block the path of light. Remember that sun आपका जो है, sun आपका main source of heat and light है earth में। एंड लाइट की हेल्प से आप चीज़ों को देख पाते हैं। शेडोज आपकी कब बनती हैं? जब ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। फोर्स हेल्प अस टू मूव ऑब्जेक्ट, स्टॉप देम एंड चेंज देयर शेप। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प करता है, उसको स्टॉप करने में हेल्प करता है एंड इवन उसकी शेप भी चेंज कर सकता है। एंड फ्रिक्शन क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट है उसे स्लो डाउन करता है। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।